This is one of the side of a shape. Complete the shape so that its area is 4 square centimeter. ये एक साइड ड्रॉ करी है और इसको इस तरह से हमें कंप्लीट करना है सो दैट इट्स एरिया बिकम्स 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर हम उसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं देन 1.5 ऑफ 2 बट वी नीड 4, तो हम इसको डबल करेंगे. 1 2 and these half 4 and half 3 and 4, so complete 4 square centimeter. Second question, two sides of a shape are drawn here, these one. Complete the shape by drawing two more sides so that its area is less than square centimeter. अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं then 1 and 1 2 and 2 it becomes 2 square centimeter, but we need less than 2 square centimeter. हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे. Now this is less than 2 square centimeter. 1 and 1 and this is not making 2, less than 2 square centimeter. यहाँ हमने इसको कंप्लीट नहीं किया है. अगर हम इसको इस तरह से कंप्लीट करते इट मे हैव बिकम 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमने हाफ स्क्वायर यहाँ से लेने के बाद इट्स बिकम 1 and almost 1.5 square centimeter which is less than 2 square centimeter. Here is a rectangle of area 20 square centimeter. Let's see 20 square centimeter area है इस rectangle का. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Yes, rectangle of this area is 20 square centimeter. Draw one straight line in this rectangle to divide into two equal triangles. तो एक लाइन ड्रॉ करनी है which makes divided this rectangle into two equal triangles में जो इसे डिवाइड कर सके. तो हमें opposite corners को ज्वाइन कर देंगे to make it a triangle. What is the area of each of the triangle? अगर rectangle का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है और एक ट्रायंगल उसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 20 का हाफ होता है 10. एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल विल बी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. हम इसको काउंट करके भी देख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is also equal. अगर इसका 10 है this will be also 10 square centimeter. Now draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal rectangles. अब इस फिगर को we will divide into two equal rectangles. पहले हमने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था इसको, अब हम इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे. तो सिंपली अगर सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दीज आर टू रेक्टेंगल्स. तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दीज स्मॉलर रेक्टेंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो बिग रेक्टेंगल का एरिया 20 था और स्मॉलर रेक्टेंगल्स का एरिया अगेन 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट into one rectangle and two equal triangles. तो रेक्टेंगल्स में तो हमने ऑलरेडी डिवाइड किया है, नाउ टू इक्वल ट्रायंगल्स में भी डिवाइड करना है. तो दिस इज़ वन
रेक्टेंगल और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो these are two equal triangles. What is the area of the rectangle? ये जो rectangle है इसका area we have already done. This is 10 square centimeter. What is the area of this triangle? 1, 2, 3, 4, and 5. This 3 makes 5. तो ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया कितना हो गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. Now next question is make as many shapes as you can by using 5 squares. तो ये सभी shapes जो हैं these are of 5 square centimeter. सब में 5 squares enclosed हैं, 5 squares से ही बनी है. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Similarly ये shapes भी 5 squares से drawn की गई हैं. How many different shapes can you draw? तो ये आप ट्राई करेंगे. बहुत सी shapes हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं of 5 squares. Which shape has the shortest perimeter? First, longest perimeter. Perimeter सबसे longest. Let's see. 1, 2. Perimeter is the length of the boundary. Perimeter जो हमने यहाँ figures ड्रॉ की हैं, यहाँ पे किसी का 11 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, तो longest is 12 centimeter is the longest perimeter and shortest here जो हमने यहाँ ड्रॉ की है इनमें से 11 सेंटीमीटर आ रहा है. जब आप इसमें और भी ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर चेंज भी हो सकता है. What is the area of the shapes? अभी सभी shapes का एरिया कितना है? Perimeter is different but what about the area? हमने जो शेप्स हैं हमें सभी शेप्स इक्वल स्क्वायर्स यूज़ करके बनाई है. दैट इज़ 5 स्क्वायर्स यूज़ करके हमने बनाई है. तो सभी जो शेप्स हैं दे हैव 5 स्क्वायर्स. सभी में 5 स्क्वायर्स हैं. दैट मीन्स एरिया ऑफ ऑल द शेप्स इज इक्वल एंड दैट इज़ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ इस फिगर में भी बहुत सी शेप्स ड्रॉ करी गई हैं. ऑलमोस्ट 12 शेप्स. दीज आर 12 शेप्स एंड दे ऑल कंटेन 5 स्क्वायर्स. ये जो 12 शेप्स हैं दे ऑल कंटेन 5 स्क्वायर्स. तो अगर एक शेप का एरिया 5 स्क्वायर है तो 12 शेप्स का एरिया कितना होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ 60 स्क्वायर्स. इस पूरी जो फिगर है, जो पूरा जो बिग रेक्टेंगल है, इसका एरिया 60 स्क्वायर्स है. इसमें टोटल अगर हम काउंट करें देयर विल बी 60 स्क्वायर्स. और इसको फाइंड आउट करने का इजी वे है काउंट द नंबर ऑफ रोज. कितनी रोज हैं हमारे पास? 10 रोज. एंड काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स. कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? 6. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज़ 60 स्क्वायर्स. तो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर इस पूरे रेक्टेंगल का, बिग रेक्टेंगल का एरिया है. इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं. 10 rows means length and columns means 6 column means breadth. तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ भी ले सकते हैं. ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल multiply number of rows with column means multiply length with breadth. So what is the perimeter? Perimeter is the length of the boundary. And what is area? Area is the space enclosed in a figure. I think by now you must have understood this. Thank you.